क्या अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है? न्यूज 18 चौपाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव के चलते कैपेक्स में थोड़ी कमी आई है। इसका असर ग्रोथ पर दिखा है। न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने यहां राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में मोदी सरकार का कोई दबाव मोदी सरकार पर नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में जो भी हेरफेर किए गए हैं वो जनता की आवाज पर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर कदम बढ़ाएगी। वहीं मार्केट में आईपीओस के कई गुना सब्सक्रिप्शन और डे ट्रेडिंग में इजाफे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा मार्केट का गला घोंटने का नहीं, लेकिन लोगों को जोखिम समझकर ही निवेश करना चाहिए। You know, a bike showroom recently the IPO of a bike showroom was oversubscribed 400 times. You know, that of a mattress company was oversubscribed 1,000 times. You know, the equity markets today are at an all-time high. You know, what is your view on the state of play of equity markets today, and what is your advice to day traders? Well, I'll first of all say we'll have to encourage the markets to be robust, no doubt. But particularly when speculative activities are too much, there needs to have a sense of caution in our minds. We need to have it. And we also need to make sure that people with their savings don't go to engage in high fluctuating or high risk ventures. No harm in participating in F&O, or no harm in going and investing in the equity market. But eventually, we need to be using financial information, authentic information, before we take a call. You know, I asked this question with a little bit of care. You know, I think that, you know, I sense that the RBI is concerned about the lending spree by, you know, these fintech companies. I also see SEBI concerned about discount brokers, zero broking. You know, so in that context, is there some kind of a bubble building up? Is there irrational exuberance happening? That's exactly what the SEBI referred to, and I've also remotely once mentioned about it. There needs to be a bit of caution on it. But that's not to suffocate the market. That's not to suffocate people who want to go and engage themselves there. It's not at all to suffocate, but it also is a note of caution, so that people don't end up losing money, which they don't go to actually, but understand the full risk and then engage. जीडीपी पर पूछे गए सवाल को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से खर्च बढ़ेगा और ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी। The economy is slowing down. You know, it's easy to catch every month or every quarter's figure and say it's not 7, it's not 8. And then the reason for 6.7 had also come out. The chief economic advisor has also mentioned that because of elections, the capital expenditure which was announced, 11 lakh crores, slightly over it, didn't find much of an expenditure happening in the Q1 because every department was probably looking at post-election time. ब्याज दरों में कब कमी आएगी? इस सवाल पर वित्त मंत्री का कहना था कि रिजर्व बैंक इस पर नजर बनाए हुए है और ग्रोथ और महंगाई के संतुलन को देखकर फैसला करेगा। India remains one of the fastest growing economies of the world. Given right now that, you know, there is some soft GDP growth and the inflation is also moderate, do you think there is a case for monetary easing? I'm asking for your view. Yes, my view being said here will become, Finance Minister expects RBI to bring it down. I don't want to add to that. RBI is doing its full analysis and taking a call. And therefore, I expect them to look at the economy as a whole, both for growth and for inflation. न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने जब वित्त मंत्री से पूछा कि टैक्स पेयर्स कब ज्यादा राहत की उम्मीद कर सकते हैं, तो वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स रिजीम उसी दिशा में एक कदम है। The new regime was brought in consciously to simplify, reduce, and make it easy for complying
The income tax manual is like this. You have to search for everything, every provision. Yes. We wanted to simplify that. All the exemptions and the provisions which are given for it will have to be removed. And therefore, we brought the new regime. So I would humbly request that, and again, it's not as if we brought something and we're talking about it. More than 78% people have moved from the old to the new regime. Yes. Which means people are seeing the point of being in the new regime, although we are not compelling anyone to come from the old regime to the new. So keeping in mind the middle class, for rate reduction, for better standard deduction. So we are looking at various ways in which the middle class will be given the benefit and the higher net worth are not getting benefit because of that, and therefore, we let them go simply. That doesn't happen. Right. So the ways in which we are bringing these, reductions to benefit the middle class are being carefully looked into, and only then we are taking a call. And now, up to 7 lakhs, there is no tax to pay. अपने जन्मदिन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को बड़ी बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी ने आज चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन भी किया। उन्होंने राज्य को 8,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके अलावा अहमदाबाद से भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 100 दिन में 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का फैसला किया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अगले 6 साल में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या है तैयारी, इसी मुद्दे पर केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। प्रहलाद जोशी साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, भारत के लिए क्या आप चुनौती मानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर? हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट, वो कब तक हासिल कर लेंगे और कितना निवेश चाहिए? चुनौती तो सभी क्षेत्र में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने अभी तक जो हासिल किया है ना, उससे देखते देखते मुझे तो पूरा विश्वास है कि 500 से ज्यादा वो जो लक्ष्य है वो पार करके हम आगे बढ़ेंगे। और अभी जो कमिटमेंट मिला है वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में हो, सेल मैन्युफैक्चरिंग में हो, या तो ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हो और इन्वेस्टमेंट में हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कमिटमेंट हो, सब अगर आप एक सिंक्रोनाइज करके देखते हैं तो वी विल डेफिनेटली नॉट ओनली अचीविंग द टारगेट, वी विल आल्सो सरपास दैट टारगेट। सर, ये निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना ला रही है केंद्र सरकार? बहुत योजना है, ऑलरेडी है, और भी हम स्टेक होल्डर से लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, कंसल्टेशन करते रहते हैं। उसके अनुसार जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स के सुझाव आते हैं वो इम्प्लीमेंट करके और भी जो आकर्षित करने के लिए जो भी करना है हम करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की केतन जोशी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, मध्य प्रदेश का पर्टिकुलर क्या प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर? मध्य प्रदेश ने काफी अच्छी तैयारी की और मुझे इस बात का संतोष है कि हम तीनों प्रकार के नवकरणीय ऊर्जा में आगे बढ़ रहे हैं। सोलर, विंड और हाइड्रल, तीनों में हमने अच्छा
अपना परफॉर्मेंस भी दिया और भविष्य के प्लान भी अच्छे लेके चल रहे हैं। और आज का ये माननीय मोदी जी के इस प्रदेश में आकर के और माननीय मोदी जी ने जो सबसे पहले काम किया है, हमारे लिए वो मॉडल है, आदर्श है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये बड़ा आयोजन सुंदर किया है। और हमारा अपना जो टारगेट है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा। सर, निवेश बहुत बड़ा एक मसला है। 30 लाख करोड़ चाहिए भारत के जो टारगेट को अचीव करने के लिए। तो मध्य प्रदेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों के लिए क्या क्या कर रहा है? कोई सोलार में कोई नई योजना या तो कोई हमने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक भी है और सबको प्रोत्साहन करने वाली भी। कितना निवेश एक्सपेक्टेड है मध्य प्रदेश को? ये तो बड़े पैमाने पे निवेशक जो आकर के हमसे बात कर रहे हैं वो अपने आप में बता रहा है कि मध्य प्रदेश बड़ी ऊर्जावान और क्षमतावान और भविष्य की संभावना वाला प्रदेश है। अब बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खोला जा सकेगा। इसके लिए 18 सितंबर से एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च हो सकती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। बताइए लक्ष्मण जी, क्या है योजना और कैसे काम करेगी? देखिए, दरअसल ये जो एनपीएस वात्सल्य योजना है उसके तहत किसी भी बच्चे को, या फिर कहें कि बच्चे थोड़ा सा ही बड़ा हुआ पैदा होने के बाद, तो उस नवजात का आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। इसका नाम दिया गया है एनपीएस वात्सल्य। इसके तहत क्या होगा कि आप उसमें कम से कम सालाना 1000 रुपये इस अकाउंट में देते रहेंगे तो वो अकाउंट आपका चलेगा। और जैसे ही वो बच्चा बालिग हो जाएगा, यानी 18 साल की उम्र पे चला जाएगा, तो वो एक रेगुलर एनपीएस अकाउंट हो जाएगा। और इसके तहत इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि आपको एनपीएस के तहत बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये साफ कर दूं कि मान लिया जाए हमने एनपीएस खोल रखा अपने नाम पे, हम एनपीएस का बेनिफिट उठा रहे हैं, टैक्स बेनिफिट, और हमने अपने बच्चे के नाम पे खोल रखा है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का बेनिफिट हमें मिलेगा। यानी एनपीएस वात्सल्य का अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो एनपीएस में बेनिफिट मिलता है उसके दायरे में ये भी आएगा। और ये इसके लिए क्या करना होगा कि एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN ये खोला जाएगा बच्चों का, और वो अकाउंट नंबर जो है पैन की तरह काम करेगा और इसके तहत आप अपने अकाउंट की पहचान रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से कहें कि शुरू से ही एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाए लोगों के पास, बच्चों के पास, जब वो बड़े हों। तो ये इस मकसद से ये लॉन्च किया जा रहा है। याद होगा वित्त मंत्री ने इसका ऐलान भी बजट में किया था। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में आज कारोबार दायरे में रहा। सेंसेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 98 पॉइंट चढ़कर 82,989 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 27 पॉइंट चढ़कर 25,384 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ने भी लगातार तीसरे दिन बढ़त पर क्लोजिंग दी है। आज के बाजार में एनर्जी, मेटल, रियल्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी, फार्मा, आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। आज सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी रही और निफ्टी के 50 में से 25 शेयरों में तेजी देखने को मिली। बजाज हाउसिंग में निवेशकों का बम्पर पैसा बना है। 3 दिन में निवेशकों का पैसा डबल हो गया। लिस्टिंग के बाद बजाज हाउसिंग का वैल्यूएशन निफ्टी की कई कंपनियों से ज़्यादा हो गया है। लिस्टिंग डिटेल और वैल्यूएशन पर बात करते हैं पूरी जानकारी के साथ। कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं। बताएं कंचन। आज बाजार में एक दमदार लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। रिकॉर्ड लिस्टिंग हम इसे बोल सकते हैं। अगर लिस्टिंग की बात करी जाए तो 115% पे लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग गेन की बात करी जाए तो 135% का इस शेयर के अंदर हमें अपसाइड देखने को मिला है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो हो गया है 1.30 लाख करोड़ का। अगर बात करी जाए ऑल ओवर मार्केट कैप में तो ये बाजार की 75वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। यानी कि बजाज हाउसिंग का जो मार्केट कैप है वो बजाज होल्डिंग से अब ज्यादा हो गया है। यही नहीं बल्कि निफ्टी की 4 कंपनी भी ऐसी है जो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नीचे आ गई है। वो 4 कंपनी कौन सी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस, साथ ही साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके अलावा इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प जो निफ्टी की कंपनी है, और इसके साथ ही साथ डाबर, कमिंस, OFSS, साथ ही साथ CG पार और PNB का जो मार्केट कैप है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करी जाए, GNPA और NNPA की बात करी जाए फिस्कल ईयर 25 क्वार्टर 1 में, तो बजाज हाउसिंग का जो GNPA है वो है
0.28% पे, NNPA 0.11%, LIC हाउसिंग फाइनेंस का एट द सेम टाइम 3.29% और 1.68%, PNB हाउसिंग 1.35% और 0.92%, एट द सेम टाइम एप्टस वैल्यू का 1.32% और 0.98%, साथ ही साथ कैनफिन होम 0.98% और 0.49% पे देखा गया है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा के जो फाइनेंशियल्स है वो देखे जाए तो NIMs अगर हम देखें तो बजाज हाउसिंग का है 3.9%, ROA है 2.30%, LIC का है 2.8, 1.18%, PNB हाउसिंग 3.7% और 2.38%। एट द सेम टाइम एप्टस का जो NIM है वो है 12.8% और 7.73% ROA का रजिस्टर किया गया है। यही नहीं बल्कि कैनफिन होम्स में भी अगर हम NIM की तरफ नजर डालें तो वो है 3.6% और ROA जो इसका है वो है 2.17%। तो ये थे इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स। यही नहीं, अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी दमदार हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जो बजाज हाउसिंग की प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है मल्टीपल 6.4 के। LIC के अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो वो है इस टाइम पे 1.78 के मल्टीपल पे चल रही है, PNB हाउसिंग 1.64x, एप्टस वैल्यू 4.20x, एट द सेम टाइम कैनफिन होम्स 2.58 के x पे चल रही है। तो बाजार में आज हमें दमदार लिस्टिंग तो देखने को मिली, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा इसका फायदा उठाया। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की दमदार लिस्टिंग रही और CNBC आवाज़ से खास बातचीत में कंपनी के MD अतुल जैन ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है, मौजूदा स्तर ब्याज दरों में अब कमी ही आएगी। अतुल जैन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ समाचार में। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव है, यानी आज वहाँ प्रचार का काम रुक गया। इससे पहले वहाँ चुनावी पारा हाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ की रैली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आतंकवाद का पोषक रहा है। घाटी में जब जब NC कांग्रेस की सरकार आई तब तब यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला। जब जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर चूम कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे। तो लंदन में गर्मियों का वैकेशन। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। अभी क्यों वो इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नॉलेज एक्सचेंज की सुविधा के साथ नई स्टार्टअप रजिस्ट्री भास्कर को लॉन्च किया और इस मौके पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने दम पर वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करेगा। स्टार्टअप के लिए सेक्शन 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनेगी जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। Bhaskar, we hope, will help the startup players, the people who are involved in the startup ecosystem, connect with each other, collaborate with each other, cooperate with each other, also compete with each other to see what else is your competition in similar areas. What the competition is doing smarter and better. Why should there not be this healthy spirit in our ecosystem? अगर आप टीवी, फ्रिज या स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लीजिए। इस फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियां लेकर आ रही हैं ढेरों ऑफर्स। इस साल पिछली बार के मुकाबले 20% तक ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। त्योहारी सीजन यानी शॉपिंग टाइम, इसलिए ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जबरदस्त कमाई और कस्टमर बेस बढ़ाने का वक्त होता है। फेस्टिवल सीजन में फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में गैजेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर कैशबैक और 20% तक डिस्काउंट और इजी EMIs के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो प्राइम डे को मिले बढ़िया रिस्पॉन्स से अमेजॉन भी उत्साहित है। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइम डे हमारा था, उससे हमें विश्वास है कि हमारा जो अब फेस्टिव सीजन की जो सेल होने जा रही है वो और भी ज्यादा बड़ी होगी। अमेजॉन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं अपनी फेस्टिव शॉपिंग करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। सो हमें उम्मीद है कि ये फेस्टिव सीजन अमेजॉन का सबसे बड़ा होगा, सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। आपने एवरीडे लोएस्ट प्राइस के लिए पॉपुलर ऑनलाइन कंपनी मीशो इस बार स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ साथ गेम खेलकर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने का मौका देगा। सिर्फ फेस्टिव में ही नहीं, हमारा रेगुलर भी ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर ऑर्डर्स एक्चुअली कम फ्रॉम टियर 2 प्लस ऑफ इंडिया, सो दैट्स व्हाट इट इज। हमारा 40% जो इनकमिंग है, जो न्यू यूजर आता है, it's actually they're transacting for the first time online in their life, right? So तो हमारा हर फेस्टिव इसी टाइप का रहा है जिसमें हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं इन नंबर्स को। सो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, दैट दीस नंबर्स विल कंटिन्यू। ऑफर्स और डिस्काउंट के अलावा कस्टमर्स को समय पर डिलीवरी मिले, इसके लिए भी ई कॉमर्स कंपनियों ने डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या बढ़ाई है। साथ ही कस्टमर केयर रिस्पांस बेहतर करने के लिए खास फेस्टिव सीजन के लिए सीजनल हायरिंग भी बड़े पैमाने पर की गई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC लॉन्च कर दी है। ये कूपे स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक सीडान है जो काफी सारे धांसू फीचर्स के साथ लैस है। इस कार में 857 किलोमीटर की बैटरी रेंज मिलेगी। डेल्टा 200 किलोवाट अल्ट्रा फास्ट चार्जर इसके साथ मिलेगा। इससे सिर्फ 30 मिनट में ये गाड़ी 10 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। फीचर्स की बात करें तो 56 इंच M-Box हाइपर स्क्रीन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम समेत कई सारी खूबियां हैं। इस कार की कीमत 1,41 लाख रुपए से शुरू होती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।